So let's start our second topic, that is scope of total income, or we can say incidence of tax. Okay, in this chapter we will study section 5. In this chapter we will study section 5, 7, 8 and 9. Okay, section 6 यहाँ पर नहीं है because section 6 we had already seen in residential status. Okay, section 6 subsection 1 basic condition, section 6 subsection 6 additional condition. Okay, hope you all remember this. So in this chapter we will study section 5, 7, 8 and 9. Okay, and this is very easy chapter. Okay, so don't worry about it. So let's start with section 5. What is section 5? Section 5 says the provision of section 5 determines the taxability of income, means the incidence of tax, or we can say the scope of total income depends upon the residential status of the SSC. जो हम टैक्स चार्ज करते हैं वो किस पर डिपेंड होता है? रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एसएससी. Number one, depend upon according to the residential status of the SSC. Number 2, the place of the SSC. Number 3, the time of accrual of income, arising of income, or we can say received of income. Okay, means scope of total income, or we can say incidence of tax, will be determined according to the residential status of the SSC, place of the SSC, accrue or arising of the income of the SSC, or we can say the received of income of the SSC. ये 4 पॉइंट जो है वो 4 पॉइंट्स के बेसिस पे we can levy the income tax, or we can say incidence of tax. Means in short, क्या मुझे ये बताओ कि क्या अगर मान लो एक टाइप का इनकम है, फॉर एग्जांपल commission received income. Okay, this income is taxable to all types of SSC. All types of SSC means ROR, RBUT NOR and NR. क्या ये तीनों के केस में टैक्सेबल होगा? Is that compulsory? Is that compulsory कि वो तीनों के केस में टैक्सेबल होगा? बोलो फटाफट. My voice is audible? Hello. Yes, sir. Yes. Should I repeat again? Yes, sir. Okay. So the income commission received, my question is the income commission received, either it is taxable for all SSC, means ROR, RBUT NOR और NR. क्या ये तीनों के केस में taxable ही होगा? Is that compulsory? No. Yes, absolutely right. Means taxable हो भी सकता, may be और may not be. Means depend upon the residential status. जैसे अभी मैंने 4 points बताए कि कोई भी incidence of tax, कोई भी income का tax जो है हम किसी भी SSC पर चार्ज करते हैं. Means SSC means वो जो मैंने individual की अभी बात कर रहे हैं, 3 types of SSC, ROR, RBUT NOR and NR. ठीक है, तो ये तीनों के ऊपर taxable होगा नहीं. It's not compulsory, mandatory नहीं है वो. ठीक है, it depends upon the residential status. उनका residential status क्या है, place of the SSC क्या है, income ये जो है वो कहां पर accrue and arise हुआ है, means generate कहां पर हुआ है तीनों के केस में, and last 4th point means वो तीनों के केस में ROR, RBUT NOR and NR ने वो income को, means commission received को received कहां पे किया, at what place they received that commission received income. ठीक है, on that basis incidence of tax will be applicable. ठीक है, for example, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. मुझे यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स के नाम चाहिए. ठीक है, so please give me फटाफट. Manan. Okay, number 1 is Manan. Next one, Rohit. Rohit. Okay, and next one, एक और, एक कोई गर्ल नाम. Nidhi.
maybe. Nidhi. Okay, Nidhi. Okay. So Nidhi, ठीक है. So let's take an example. ठीक है. ये मनन, रोहित and निधि, just like Three Idiots. Okay, Three Idiot movie देखा ना आपने? ठीक है, रणछोड़ दास, राजू एंड फरहान. ठीक है. सो लाइक दैट ये तीनों फ्रेंड्स साथ में ग्रेजुएशन कर रहे हैं. वो तो इंजीनियरिंग था, बट यू आर इन ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट. ठीक है, आपका ग्रेजुएशन हो गया, क्लियर. फर्स्ट केस मनन. मनन ने क्या किया आफ्टर ग्रेजुएशन? ठीक है, उसने एमबीए किया एंड अपना बिजनेस सेटअप किया इन इंडिया. ठीक है, यहाँ पर अपना बिजनेस सेटअप कर लिया और यहीं पे अपना बिजनेस अच्छे से स्मूथली रन कर रहे हैं. ओके. नेक्स्ट वन इज रोहित. रोहित को कोई फॉरेनर पसंद आ गई. ठीक है, फॉरेनर, अब्रॉड की लड़की कोई घूमने उमने आई थी टूरिस्ट वीजा पे. ठीक है, एंड देन वो नजर से नजर मिली और कटा. ठीक है, सो रोहित कहाँ चला गया? अब्रॉड चला गया. ठीक है, शादी करके. एंड लेकिन वो इंडिया में आते जाते रहता है, बोलता है कि नहीं, मेरा जन्मभूमि क्या है? इंडिया है. माय बॉर्न प्लेस इज इंडिया, सो मैं इंडिया में भी रहूंगा और वहां भी रहूंगा. ठीक है. नेक्स्ट वन इज निधि. निधि ने एमएनसी कंपनीज में जॉब किया. ठीक है, डिग्री हो जाने के बाद में उसको अच्छा खासा जॉब मिल गया एमएनसी कंपनी में. एंड देन आफ्टर 2 years शी लेफ्ट इंडिया. ओके, एंड एमएनसी कंपनी का जो ब्रांच है आउटसाइड इंडिया, वो वहां से ही क्या कर रही है? अपना एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू कर रही है. ठीक है, तो तीनों को अपने अपने रोल समझ में आ गए. मनन, व्हाट आर यू डूइंग? Business in India. Okay. Set up a business after MBA. Yes. Rohit, what about you? तो शादी करके अब्रॉड चला, शादी करके अब्रॉड चला गया, फिर उसके आगे? आता जाता रहता. हाँ, यस, आते जाते रहता हूँ. तो खाली शादी पे ही फोकस है इसका. एंड देन उसके बाद व्हाट अबाउट निधि? MNC कंपनी में जॉब किया एंड देन फॉरेन जाके वहां की ब्रांच में जॉब किया. यस, जॉब कंटिन्यू कर रहे हो. ओके, यस. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक इनकम का सोर्स लिखता हूँ, तो द इनकम सोर्स है रेंट रिसीव्ड from house property which is in India, which is located in India. ठीक है, जो रेंट रिसीव्ड हुआ है उसका लोकेशन कहां पर है? इन इंडिया में है. तो फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मनन, ठीक है, मनन का बिजनेस भी है, मनन का एक एडिशनल हाउस प्रॉपर्टी भी है. उसने हाउस प्रॉपर्टी को क्या किया है? लेट आउट किया है. लेट आउट मींस रेंट पे दिया है. वहां से उसको क्या मिल रहा है? रेंट. ठीक है, सो क्या वो उस रेंट पे, हाउस रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे, क्या मनन को टैक्स देना होगा? Yes, sir. यस, एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज़ मनन तो यही का है. ओके, यहीं पे बिजनेस रन कर रहा है एंड प्रॉपर इंडियन है. ठीक है, दैट मींस वो कोई भी इनकम अर्न करे उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा. सो मैंने यहाँ पे राइट टिक किया है, दैट मींस टैक्सेबल. ओके, नेक्स्ट वन इज रोहित. नेक्स्ट वन इज रोहित. रोहित तो शादी करके अब्रॉड चला गया, लेकिन इंडिया में आते जाते रहता है. ओके, सो अगर रोहित का कोई हाउस प्रॉपर्टी है एडिशनल इन इंडिया, ओके, इन इंडिया में रोहित का कोई एडिशनल हाउस प्रॉपर्टी है एंड देन वहां से रोहित का भी एक हाउस प्रॉपर्टी है विच इज ऑल्सो लोकेटेड इन इंडिया एंड ही ऑल्सो रिसीव्ड रेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी विच इज लोकेटेड इन इंडिया. ठीक है, तो मुझे आंसर दो कि क्या रोहित को वो इनकम, पर्टिकुलर इनकम दैट विच इज रिसीव्ड फ्रॉम रेंट मींस हाउस प्रॉपर्टी, इज इट टैक्सेबल टू रोहित और नॉट? सर मे बी टैक्सेबल है, मे बी. मे बी टैक्सेबल होगा. ओके, ठीक है. सो मैं यहाँ पे ऐसे टिक कर रहा हूँ, बट रोहित का आंसर मैं लिख दे रहा हूँ मे बी. ओके, ठीक है, एक्चुअली मैंने स्पेलिंग वो मत देखो, बी मैंने नहीं लिखा. ठीक है, मे बी. ओके, नेक्स्ट वन, लेट्स कम टू निधि. ओके, निधि, you are living in you are living in abroad, okay, and doing job in MNC company. Again, you also have a extra additional house property which is located in India, and you also receive rent from that particular house property which is located in India. What is the taxability of that income? Either it is taxable or not. सर नॉट टैक्सेबल होगा ना? Okay, again she is also asking me, sir, not taxable hoga na. I'm asking you and you're in feedback again. मतलब वही मे बी और मे बी नॉट ऐसा. Okay.
ठीक है, मे बी और मे बी नॉट मीन्स यहाँ पर बच्चे क्या हो गए कंफ्यूज्ड, ओनली सिर्फ एक पर्टिकुलर कंडीशन में, मीन्स इन केस ऑफ मनन the income received from that particular house property which is located in India is taxable. Okay, इतना आंसर आप लोगों ने प्रॉपर दिया एंड कॉन्फिडेंटली दिया। बाकी लोग जो जिसका नाम यहाँ पे नहीं लिखा है वो भी अच्छे से समझो, ठीक है, अपने आप को अंडरस्टैंड कर लो कहीं पर भी, ठीक है। एंड देन उसके बाद में बाकी क्या, रोहित एंड निधि के केस में सर मे बी मे नॉट बी ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो लेट मी टेल यू, let me tell you, rent received from house property which is located in India, which is located in India, that will be taxable to all SSC irrespective of their residential status. Irrespective of their residential status means whether he or she is a मनन और रोहित और निधि, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको पता है एक एग्जांपल 3 नाम से आपको मैंने एक्चुअली में क्या समझाया पता है, पहले इसका आंसर बता देता हूँ, देन उसके बाद द आंसर इज इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इज टैक्सेबल टू मनन आल्सो, in case of Rohit also and in case of Nidhi also. Means अगर मनन रिसीव करता है, ठीक है, रेंट फ्रॉम देयर पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी विच इज लोकेटेड इन इंडिया, दैट इज टैक्सेबल टू हिम। रोहित के केस में भी क्या होगा, टैक्सेबल होगा, एंड निधि के केस में भी क्या होगा, टैक्सेबल होगा, वेदर शी इज इन इंडिया और नॉट लिविंग इन इंडिया। ओके, इट विल बी टैक्सेबल, इट विल बी चार्जेबल टू टैक्स, ठीक है। सर अभी एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है मैं बताता हूं आपको। ये जो मैंने फर्स्ट केस लिखा है मनन, दैट इज ROR। नेक्स्ट वन इज रोहित, प्लीज हेल्प मी, क्या होगा, R but NOR. RBNOR, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट निधि, निधि NR. यस, वेरी गुड, NR। अगर मैं डायरेक्टली आपको ये तीनों पर्टिकुलर चीज लिखा के बताता कि फर्स्ट केस इज ROR, R but NOR एंड NR, तो लाइक चलो एकदम थ्योरेटिकल पार्ट जा रहा है तो मजा नहीं आता, ठीक है, इंटरेस्टिंग नहीं होता। अभी क्या हो गया, अभी मनन के केस में मैंने आपको एग्जांपल दिया, मनन का ग्रेजुएशन हुआ, उसने MBA किया एंड देन सेटअप यहीं पर किया एंड ही वाज इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में ही रह रहा है, तो आप समझ सकते हो कि हाँ इज आर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, ठीक है। रोहित के केस में शादी करके अब्रॉड गया एंड देन वो आ रहा है जा रहा है, ठीक है, अराइवल डिपार्ट, देन रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, ओके। एंड इन केस ऑफ निधि, जॉब करके MNC कंपनी में ब्रांच में अब्रॉड में चले गए एंड देन वहां पर ही स्टे कर रही है, दैट मींस शी इज नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो तीनों के केस में इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेसिडेंशियल स्टेटस, इफ he or she received a particular income, but received का place क्या है, In India. This is in India, that is taxable to all SSC irrespective of their RS, means residential status. Is that clear? Yes, sir. Yes, Very sir. good, very good. तो मैंने अभी एग्जांपल बताया था, अब मैं एक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशन पे आता हूँ। First, income received in India, that is taxable to all SSC. Okay, next one. Second point is income deemed to be received in India, section 7, जो यहाँ पे, ठीक है, सेकेंड सेक्शन है वो। सर व्हाट इज, कैन एनीवन टेल मी
Income deemed to be received in India means, income deemed to be received in India means, accrued So income. currency मतलब rupees currency currency means like dollar, yen, deemed to, euro, like that. हाँ जैसे वो अगर इंडिया है तो रुपीस में वैसे मिलेगा शायद सर, मे बी डीम टू रिसीव. Yes, absolutely wrong answer. Okay, no issue. Try another one. कोई और बताओ Income फटाफट. receivable. Income receivable. Yes, absolutely wrong answer again. Next. Please try करते रहो फटाफट. There are 38 participants. Please try. Fast. Income due but not yet received. Income due but not yet received. Yes, absolutely wrong answer. Okay, next one. See, due का क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा मैंने? Received. तो ड्यू, रिसीवेबल, ये क्वेश्चन रेज ही नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट वन, लास्ट वन, उसके बाद मैं बताता हूँ. फर्स्ट, टेल मी फर्स्ट. नहीं, व्हाट हैपेंड गाँव वाले, क्या हो गया? जल्दी बोलो. इनकम डीम्ड, इनकम रिसीव जो नॉन रेजिडेंट होता है उससे. इनकम रिसीव जो नॉन रेसिडेंट होता है. इनकम रिसीव फ्रॉम नॉन रेजिडेंट. नहीं, यहाँ पे तो मैंने कंडीशन लिखा है आर ओ आर, आर बट एन ओ आर एन एन आर, तो ये पर्टिकुलर साइड अलग है. यहाँ पे तो सिर्फ इनकम के बारे में बात करना है. ठीक है, इनकम कहाँ से आ रहा है वो नहीं बात है. नहीं, ओके चलो, लेट मी टेल यू. इनकम deemed to be received in India. Okay, that is most important. ठीक है. फर्स्ट वाला पार्ट अगर आप देखोगे, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट दोनों सिमिलर है, बट ओनली वन चेंजेस इज दैट डीम्ड. पहला जो पार्ट है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है, ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे से समझने की जरूरत है. इनकम रिसीव्ड इन इंडिया मींस अगर मान लो कि मनन, ठीक है, मनन का बिजनेस इंडिया में ही सेटअप है. ठीक है, यस, मान लो क्या है. ठीक है, एंड देन वो कोई भी इनकम रिसीव कर रहा है इन इंडिया. ठीक है, इन इंडिया, दैट इज टैक्सेबल. ठीक है, मींस उसको इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा. इन केस ऑफ आर बट एन वर, अगर रोहित ने, सी, अगर रोहित, यहाँ मैंने क्या बोला आपको, इंडिया में भी है और बाहर भी जा रहा है, अब्रॉड, डिपार्ट अराइवल ऐसा कर रहा है. बट फॉर एग्जाम्पल अगर उसने जो रेंट का प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी का जो रेंट है उसने रिसीव किया इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, तो क्या होगा? टैक्सेबल होगा आर बट एनओआर को. एंड इन केस ऑफ एनआर मींस निधि के केस में भी क्या होगा, भले ही वो क्या है, एनआरआई है, बट उसे भी क्या होगा, उसने हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है वो रिसीव किया इन इंडिया, दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल. ठीक है, तीनों के केस में. सेकेंड वन इज इनकम डीम्ड टू बी, मींस हम मान लेंगे, गवर्नमेंट क्या कहती है, वी अज्यूम दैट, डीम्ड मींस अज्यूम, हम अज्यूम कर लेंगे कि वो इंडिया में रिसीव्ड हुआ है, एंड दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल टू ऑल एसएससी, दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ एसएससी. ठीक है, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया. सर अभी इसका मीनिंग तो बताओ थोड़ा, फॉर एग्जांपल. ठीक है, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड, ऐसे कौन से इनकम है जो गवर्नमेंट कहती है कि हम इसे मान लेंगे दैट इज टू बी रिसीव्ड इन इंडिया. ठीक है, तो इसमें इसका सेक्शन आपको ध्यान में रखना है, सेक्शन 4. ठीक है, सेक्शन 4 क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट इज, देखिए ये ध्यान में रखना है, सेक्शन 7 में सिर्फ 4 पर्सन है ऐसे. कितने पर्सन है? देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ इनकम जो
क्या होंगे, सेक्शन 7 में इंक्लूड होंगे। सिर्फ वो 4 इनकम को ही आप क्या कर सकते हो, डीम्ड कर सकते हो, दैट इज टैक्सेबल टू ऑल एसएससी। ठीक है, वो 4 इनकम में से पहला इनकम क्या है, एम्प्लॉयर। फॉर एग्जांपल जैसे कि निधि, ठीक है, जैसे कि निधि जॉब कर रही थी, ठीक है, तो उसकी सैलरी से कुछ अमाउंट कट होता है एज अ पीएफ, सब कुछ पता है ना, पीएफ प्रोविडेंट फंड। Yes. ठीक है, Yes, sir. तो प्रोविडेंट फंड Yes. में कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है, ओनली एम्प्लॉय और बोथ, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर बोथ, बोलो जरा। Both. बोथ, यस। Both. एम्प्लॉय एज वेल एज एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय के सैलरी से भी कुछ अमाउंट कट होता है एंड एम्प्लॉयर भी सेम अमाउंट क्या करता है, इन कंट्रीब्यूट करता है इन पीएफ। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या होगा कि एम्प्लॉयर ट्रांसफर्ड इन एम्प्लॉयज आरपीएफ। सर व्हाट इज आरपीएफ, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ओके, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मींस गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको रिकॉग्नाइज्ड बोलते हैं। ठीक है, प्राइवेट होगा तो अनरिकॉग्नाइज्ड, यूआरपीएफ होगा। सो यहाँ पे क्या लिखा है, आरपीएफ। ठीक है, एम्प्लॉइज ट्रांसफर्ड इन, सॉरी, एम्प्लॉयर ट्रांसफर्ड इन एम्प्लॉइज आरपीएफ एक्सीडिंग 12% ऑफ सैलरी। मींस जो सैलरी होगा एम्प्लॉइज का, उसकी सैलरी का 12% क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयर नॉर्मली क्या करता है, पीएफ में कंट्रीब्यूट करता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट्स 12% ऑफ द सैलरी नॉर्मली, बट इफ ही कंट्रीब्यूट एक्सीडिंग 12% ऑफ सैलरी, देन अगर 12% ऑफ सैलरी से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, देन गवर्नमेंट कहती है वी अज्यूम और वी डीम्ड कि वो इनकम क्या है, रिसीव्ड होगा इंडिया में एंड दैट इज टैक्सेबल। सर तो उसमें ये क्या हो गया, डीम्ड कैसे हो गया, वो तो मिलने ही वाला है ना। नहीं, पीएफ का पैसा आपको सैलरी के साथ में मिलता है और लॉन्ग टर्म बेसिस पे होता है वो, Long term. लॉन्ग टर्म Long बेसिस Long पे, term basis आफ्टर, पे. हाँ, आफ्टर रिटायरमेंट और आफ्टर डेथ, और अगर आप वो कंपनी लेफ्ट कर रहे हो तो आफ्टर 6 मंथ्स मिनिमम आपने वो कंपनी में जॉब किया होना चाहिए। उसके बाद आफ्टर दैट यू कैन विड्रॉ दैट प्रोविडेंट फंड अमाउंट, है ना। यस और नो। Yes, sir. Yes. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, अच्छा यहाँ पे आप ध्यान देना, मैंने क्या बोला, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया सेक्शन 7 में सिर्फ 4 इनकम को ही रिसीव किया जाएगा। दैट मींस दिस इज एग्जॉस्टिव टाइप। याद है मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताया था, एग्जॉस्टिव एंड इंक्लूसिव। एग्जॉस्टिव मींस जितना आपको पर्टिकुलर चीज दिया है आपको उतना ही अंडर एस्टिमेट करना है, नॉट बियॉन्ड दैट। ठीक है, सो सिर्फ ये 4 इनकम को ही आप डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया अंडरस्टैंड करोगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के पीएफ में, आरपीएफ में 12, सबको दिख रहा है पीडीएफ, प्लीज लेट मी नो। No. नहीं सर, नहीं दिख रहा। Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है। आ गया. Yes, sir. अभी दिख रहा Yes, है. sir. यस, एक्चुअली रेन इज, हाँ सर, आ गया सर। बारिश बहुत ज्यादा है ना, दैट्स व्हाई ये प्रॉब्लम हो रही है वाईफाई कनेक्शन का भी। ठीक है, होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम 5, 6, 7, 8, तो मैंने सेक्शन 5 तो एक्सप्लेन कर दिया है आपको। सेक्शन 5 सेज द स्कोप ऑफ टोटल इनकम, देखो यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू द रेसिडेंशियल स्टेटस, प्लेस एंड टाइम ऑफ अक्रूवल और रिसिप्ट ऑफ इनकम। ओके, सो फर्स्ट वन जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था दैट इज हियर, यहाँ पे आ जाते फर्स्ट। यस, सी, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, एक्सप्लेनेशन दिखा सबको। Yes, sir. फर्स्ट वन इज इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा था, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। ओके, दैट मींस इट इंडिकेट्स money received in India, any amount received in India, then it is taxable to every person. Okay, ROR, RBUT, NOR and NOR. Second one, देखो ये हमारा explanation continue था, income deemed to be received in India under section 7, that Sir, you're is, not audible. सर आवाज गायब हो रहा है वहाँ पर। Screen भी गायब है. PDF नहीं दिख रहा है आप लोगों को? नहीं सर, सब गायब हो रहे हैं बीच में। स्क्रीन दिख रहा है सर। आवाज जा रहा है। अच्छा, आवाज थोड़ा इशू हो रहा है।
एक्चुअली वाईफाई वहां से पूरा कनेक्शन ऑफ हो गया है एंड मैंने उसको अपने डेटा से कनेक्ट किया है लैपटॉप को, सो दैट्स व्हाई इतना इशू हो रहा है, बट हाँ आवाज आ रही है? प्लीज टेल मी फास्ट। हाँ सर, पर थोड़ा अटक रहा है सर आवाज। ओके, बहुत एंड ब्रेक हो रहा है आपका वॉइस। और जो स्क्रीन पे है वो पीडीएफ आपको शो हो रहा है? नहीं, अभी तक तो नहीं। नहीं सर। नो मैंने सर, शेयर लोड किया हो है। रहा है। नहीं सर, बस बताया कि हैज स्टार्टेड शेयरिंग स्क्रीन। ओके ओके, सो मीन्स वही कनेक्शन प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा आएगा, आपको देखो डिले हो रहा है। आ गया सर। आया? यस, वो आ गया सर। एक्सप्लेनेशन वाला पेज ओपन है ना? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ओके, सो जस्ट आप लोग वॉइस पे उतना ध्यान मत दो, आप थोड़ा रीड करने पे भी ध्यान दो जरा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। फर्स्ट पॉइंट इज any contribution by the employer in employees RPF exceeding 12% of salary that would be taken as deemed to be received in India. Means अगर employer employees के RPF में, ठीक है, 12% सैलरी से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, that means it would be received in India. ठीक है, deemed to be received in India. Sir, one doubt is there. एक डाउट है, यहाँ पर जो सैलरी दिया है, तो सैलरी मीन्स व्हाट, उसका डिटेल हम सैलरी के चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर जस्ट मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 12% ऑफ सैलरी, आप सिर्फ इतना समझना, ठीक है? ये पॉइंट क्लियर है सभी को? प्लीज लेट मी नो। यस सर। Yes, sir. ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट, ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज इंटरेस्ट। अच्छा, ये जो आरपीएफ में एम्प्लॉइज एज वेल एज एम्प्लॉयर दोनों भी जो कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, उस पे इंटरेस्ट भी तो जनरेट होता होगा ऑफ कोर्स, बिकॉज ये तो लॉन्ग टर्म लॉन्ग पर्पस के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए 15 इयर्स 20 इयर्स। तो इतने डिले के बाद में जब वो पैसा हम विड्रॉ करते हैं तो उस पे और भी क्या मिलता है, इंटरेस्ट भी मिलता है, ठीक है? सो इंटरेस्ट एक्सीडिंग 9.5% इन एम्प्लॉइज आरपीएफ अकाउंट, अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, ठीक है, 9.5% से ज्यादा, ठीक है, आरपीएफ अकाउंट के ऊपर, तो भी गवर्नमेंट क्या कहती है, हम उसे क्या मान लेंगे, वी विल कंसीडर्ड एज इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है? तो आपको ये ध्यान में रखना है। देखो मैंने दोनों पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो रिलेटेड टू आरपीएफ, सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो रिलेटेड टू आरपीएफ। ओके, फर्स्ट पॉइंट में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, लेकिन 12% ऑफ सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकेंड क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है आरपीएफ अकाउंट पे, बट वो इंटरेस्ट जो है 9.5% से एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये दो पॉइंट क्लियर है सभी को? यस। ओके, थर्ड पॉइंट इज ट्रांसफर्ड बैलेंस फ्रॉम यूआरपीएफ टू आरपीएफ। अच्छा, अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया द मीनिंग ऑफ यूआरपीएफ एंड आरपीएफ। कैन एनीवन प्लीज टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ दीज टू? RPF recognized provident fund, URPF unrecognized provident fund. यस, वेरी नाइस, ठीक है। सो ट्रांसफर्ड बैलेंस फ्रॉम, यहाँ पे ट्रांसफर्ड बैलेंस का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई किसी एम्प्लॉइज का यूआरपीएफ, ठीक है, किसी एम्प्लॉइज का यूआरपीएफ में क्या था, उसका बैलेंस था, उसने अपना यूआरपीएफ का बैलेंस कन्वर्ट कर दिया, किस में कन्वर्ट कर दिया, मींस ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर्ड इनटू आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। देन हम ऐसे Yes Okay. sir. So transferred balance from URPF to RPF, जो हमारा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का बैलेंस है, अगर वो हम ट्रांसफर करते हैं किसमें, आरपीएफ में,
then it is also deemed to be received in India. हम उसे मानेंगे कि वो इंडिया में received है, and it is also taxable to all three SSC, ROR, ARBOT NOR and NR. ओके, मेरे Yes, वाईफाई वाले sir. भैया का धन्यवाद, ठीक है, उन्होंने चालू कर दिया. Okay, so let's start. So here fourth point, ठीक है, first, second और third point is clear to everyone, ठीक है, transferred from URPF to RPF is also deemed to be received in India and it is taxable to all three employees whether it irrespective of their residential status, चाहे वो ROR हो, ARBOT NOR हो और NR हो, ठीक है. And fourth point is employers contribution in a notified pension scheme, ठीक है. ये एक्चुअली में क्या होता है notified pension scheme, जो ये सेक्शन होता है अंडर सेक्शन 80CCD में, इसका हम बेनिफिट ले सकते हैं फॉर डिडक्शन, ठीक है. सो नोटिफाइड पेंशन स्कीम मींस जो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया हुआ है, ठीक है, उस केस में अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है फॉर एम्प्लॉई इन नोटिफाइड पेंशन स्कीम, देन इट इज आल्सो डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया एंड इट इज आल्सो टैक्सेबल टू ऑल एसएससी irrespective of their residential status. तो आपको ये deemed to be received in India में सिर्फ ये 4 पॉइंट्स को ही कंसीडर करना है, ठीक है. ये 4 पॉइंट्स ही क्या है, आपको डीम्ड करने, समझने हैं, क्लियर. बाकी ये नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, दिस इज एन एग्जॉस्टिव टाइप. एग्जॉस्टिव टाइप मींस इनकम टैक्स एक्ट 1961 में क्या बोलता है कि ये 4 चीज को ही आपको क्या करना है, अंडर एस्टिमेट करना, इंटरप्रिटेट करना है, ठीक है, नॉट मोर देन दैट. जैसे इंक्लूसिव में हमने और भी प्रिटेंड किया था, बट यहाँ पर नहीं करना है, सिर्फ ये 4 चीजों को ही डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया करना है अंडर सेक्शन 7. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. प्लीज रिवर्ट मी फास्ट. Yes. Okay, so next one third point is income accrue or arise in India, ठीक है. income accrue or arise in India means accrued or arise means generate. okay, for example अगर मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, किसी कंपनी में, कॉर्पोरेट में, वहां से सैलरी रिसीव किया, सो कॉर्पोरेट का प्लेस कहाँ पर है, इन इंडिया. जनरेट कहाँ पे हुआ, इनकम इन इंडिया, देन इट इज टैक्सेबल टू ऑल एसएससी, चाहे वो आरओआर हो, आरबट एनओआर हो और एनआर हो, ठीक है. तीनों के केस में क्या होगा, टैक्सेबल हो. Fourth point is income deemed to be accrued or arise in India under section 9, ठीक है. ये वाला पॉइंट क्लियर कर देते हैं, देन उसके बाद में स्टॉप करेंगे, ठीक है. फर्स्ट वन इज, इसमें भी 4 पॉइंट है, ठीक है, सेम एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, ठीक है. जो 4 पॉइंट्स गिवन है सिर्फ वही आपको डीम्ड करना है, ठीक है. आपको मैं अगर स्टार्टिंग से बोलूं तो फर्स्ट वन इज इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, मींस इनकम इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया. Second one is income deemed to be received in India. Third point is income accrued or arise in India, means India में generate होगा तो भी taxable to all SSC. And fourth point, income deemed to be accrued or arise in India. That means हम समझ लेंगे, हम मान लेंगे कि इनकम कहाँ पे जनरेट हुआ है, इन इंडिया में जनरेट हुआ है, ठीक है. सर हाउ कैन बी सपोज कि वो इनकम इंडिया में ही जनरेट हुआ है, उसके लिए आपको ये 4 पॉइंट्स देखने होंगे. सी द फर्स्ट पॉइंट, थ्रू और फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, थ्रू और फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया. ओके, अच्छा इसका एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन कंपनी, ठीक है, फॉरेन कंपनी, उसने अपना एक ब्रांच, ठीक है, फॉरेन कंपनी है, उसने अपना एक ब्रांच जो है, वो इंडिया का मैंने स्मॉल पार्ट बनाया ऐसा नीचे, ठीक है, इंडिया है, यहाँ पर एक अपना ब्रांच ओपन किया है, ठीक है. और फॉरेन ब्रांच जो है वो इंडिया में जो भी ये ब्रांच से इशू हो रहा है, जो भी सोल्ड आउट हो रहा है, इनकम जनरेट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है. सो दैट मीन्स यहाँ वाले ब्रांच का जो भी इनकम होगा, जो भी टर्नओवर होगा, इस ब्रांच के ऊपर हम क्या अज्यूम करेंगे, गवर्नमेंट क्या कहती है कि आपका फॉरेन में भी हेड ऑफिस है और ब्रांच उसका जो है इंडिया में है, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर टोटल टर्नओवर जो है इसका 100 CR
एंड जो मुंबई में ब्रांच है विद इन इंडिया में, उसके ऊपर 20 CR का क्या हुआ है, टर्नओवर हुआ। ठीक है, तो मुझे बताओ कि हम अज्यूम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया कौन सा समझेंगे, 100 करोड़, 20 करोड़ और 120 करोड़, क्या समझेंगे? सर क्वेश्चन नहीं समझा। क्वेश्चन नहीं समझा? फॉरेन कंपनी, ठीक है, फॉरेन कंपनी है एक, ठीक है, अब्रॉड में, एंड उसने अपना ब्रांच जो है वो इंडिया में ओपन किया, ठीक है, मुंबई में फॉर एग्जांपल, मुंबई में, ठीक है, एंड जो टर्नओवर होगा, टर्नओवर जो है फॉरेन कंपनी का 100 CR है, जो उसका बिजनेस फॉरेन में है, एंड जो इंडिया में बिजनेस है उसका टर्नओवर इज 20 करोड़। सो द माय क्वेश्चन इज, इनकम यहाँ पे जो डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया, गवर्नमेंट क्या समझेगी, कौन से इनकम को डीम करेगी, अज्यूम करेगी कि वो इंडिया का इनकम है, 100 करोड़, 20 करोड़ और 120 करोड़? 20 करोड़, 20 करोड़। 20 करोड़। यस, आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, ये 20 करोड़ को क्या समझेगी, इंडिया में, ठीक है, और इसके ऊपर टैक्स चार्ज करेगी। ठीक है, समझ में आया सभी को ये वाला थ्रू और फ्रॉम कनेक्शन इन इंडिया? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। ओके, सेकेंड पॉइंट इज थ्रू और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया। देखो इसका वाला जो एग्जांपल है मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही, जो निधि का एग्जांपल दिया था, निधि इज शी इज इन अब्रॉड एंड उसका जो हाउस प्रॉपर्टी है वो इंडिया में। ठीक है, तो जो हाउस प्रॉपर्टी लोकेशन कहां पर है, प्रॉपर्टी इन इंडिया, तो उसे भी हम क्या मानेंगे कि अज्यूम कि अक्रू और अराइज इन इंडिया है, उसका जनरेशन कहां पे हुआ है, इनकम का इंडिया में हुआ है, दैट इज आल्सो टैक्सेबल टू ऑल 3 टाइप्स ऑफ एसएससी, आरओआर, आरबट एनओआर एंड एनआर। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट, थ्रू और फ्रॉम एनी असेट्स और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। ठीक है, एनी असेट्स और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया मींस, अगर मान लो फॉर एग्जांपल निधि जो है अब्रॉड में है एंड उसने इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट किया। यस यस, Time is up and Preeti ma'am is also here. ओके ओके, जस्ट मैं ये 2 पॉइंट, ये 1 पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये लास्ट वाला जो ट्रांसफर है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, सो लेट मी कंप्लीट दिस, जस्ट गिव मी 30 सेकंड। ओके, so through or from any asset source of income in India means for example निधि जो है उसका वो अब्रॉड में स्टे कर रही है, ठीक है, लेकिन उसने इंडियन कंपनी में कहीं पर इन्वेस्ट किया है, इंडियन कंपनी में डिपॉजिट किया है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर डिपॉजिट तो सिर्फ बैंक में होता है ना, नहीं, कंपनी में भी डिपॉजिट होता है, पब्लिक डिपॉजिट जिसे कहते हैं। ठीक है, सो कंपनी में डिपॉजिट किया है एंड जो इंडियन कंपनी में डिपॉजिट किया है उसका जो इनकम है, निधि क्या कर रही है, अपने फॉरेन ब्रांच में ही क्या कर रही है, बोली कि मुझे फॉरेन ब्रांच में ट्रांसफर करो। सो बताओ मुझे निधि कहां पर है, अब्रॉड। ठीक है, उसने फंड ट्रांसफर भी कहां करके लिए, अब्रॉड में, रिसीव भी कहां किया, अब्रॉड, लेकिन इनकम जो है जनरेट कहां पर हुआ, इंडियन कंपनी में उसने डिपॉजिट किया था विच इज लोकेटेड इन इंडिया। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट कहती है हम ऐसे इनकम को भी क्या करेंगे, डीम्ड करेंगे, दैट इज आल्सो अक्रूड और अराइज इन इंडिया। आई थिंक दिस इज क्लियर, ये वाला समझा सभी को? ABC, Yes, sir. any doubt? Yes, sir. No, sir. ये 3 पॉइंट में किसी को डाउट नहीं है ना? ओके, सो फोर्थ का D जो है वो वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा। ओके, एंड थैंक्स फॉर टुडे, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बाय, बाय बाय।